Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the microorganisms. What are microorganisms? Microorganisms. As we know, there are number of species in this world, in this biological world. Some are microscopic, and others are macroscopic. When we say microscopic, means minute or tiny organisms which we cannot see with the naked eye, only can be magnified with the aid of microscope. So the microorganisms, smallest organisms, microscopic organisms, which we can see only with the help of microscope. बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स इस कायनात में, लेकिन हमें पता कब चला? व्हेन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड. जब दुनिया में माइक्रोस्कोप आया, रॉबर्ट हुक ने हमें माइक्रोस्कोप दिया. रॉबर्ट हुक, बिकॉज वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई. ये कहाँ कहाँ होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है और कितने नुकसानदेह भी है. सो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है, इसको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी का एक ब्रांच है called microbiology. The meaning of the word lies in the subject. Micro, small, microscopic, minute, tiny, bio, living, logy, study of small microscopic organisms. That is called microbiology. And the father of microbiology was the Louis Pasteur. So who studied, उसने बहुत काम किया इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर. इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको हम कहते हैं, ये हमारे लिए कितने नुकसानदेह और फायदे, वो आगे हम पढ़ेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल let us classify how many types of microorganisms are present in our biological world. Microorganisms. अब हमें ये समझ आ गया कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं. What is the microscope? That is an instrument which helps us to magnify the smallest organisms, smallest parts of the plants and animals. माइक्रोस्कोप के बहुत सारे किस्में होते हैं, इनकी बहुत सारी किस्में हैं. Let us explain. Number one, simple microscope. Simple microscope आपके लिए बहुत जरूरी है, ये याद रखना. Second, compound microscope. The microscope available in our schools is simple microscope and compound microscope. For higher classes, even from the 8th class, we demonstrate different practicals in the school labs, and we use simple microscope and compound microscope. Simple microscope, simply called magnifying glass, which is mostly used by the old persons when they study the paper, when they read the paper, newspaper, so that they can see the large words in the paper due to weak eyesight.
So that is called a simple microscope. Even the watch makers and watch, those persons who are repairing the watches, our watches, they use this magnifying glass in order to magnify the small tools of the watch. So that is simple microscope. Now compound microscope, it has two objectives, eyepiece, and ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस होता है इसमें. ऑब्जेक्टिव जिसमें डिफरेंट पावर्स के होते हैं, आई पीस का भी अपना एक पावर होता है. इसमें लो पावर एंड हाई पावर का होता है. तो इस तरह से ये हम जब माइक्रोस्कोप देखेंगे उस वक्त हम इन पार्ट्स की स्टडी करेंगे कि ये माइक्रोस्कोप हमें मदद करता है टू मैग्नीफाई small objects, bacteria, which we are going to discuss. For example, the microscopic organism. So this is microscope. Now what are the different categories of microorganisms? Let us classify these microorganisms. Number one, classification. We can write classification of microorganisms. साथ साथ हम ये याद करेंगे, माइक्रो समझ आ गया, स्मॉल ऑर्गेनिज्म. अब कौन कौन सा है? नंबर 1, बैक्टीरिया. It is also the branch of biology. We can say bacteriology, study of bacteria. बैक्टीरिया के बारे में जब हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी. सो बैक्टीरिया फर्स्ट कैटेगरी. नंबर 2, वायरस और वायरसेस. नंबर 3, प्रोटोजोआ. Number 4, algae भी पढ़ सकते हैं. fungi. Now let us explain one by one so that we can easily understand the morphology, physical features and biological aspects of these organisms. All these categories of microorganisms. This algae, this is the largest group of plants, water plants. Some are unicellular, some are multicellular, some are microscopic. So it is also categorized in it. But also we studied it in plant kingdom. When we study the classification of plants, उसमें हम ये स्टडी करते हैं. इसमें छोटे से छोटा भी होता है, बड़े से बड़ा भी होता है. Most of the students have seen water plants. We call them algal plants. Hycology. Bacteria microscopic होते हैं, smallest size, millimicrons. We cannot see with the naked eye. And present air, water, soil, plants and animals. हर जगह पाए जाते हैं. ये जो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रोस्कोपिक हैं, इनको हम देख नहीं सकते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. एयर में होते हैं, हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, जमीन में, प्लांट्स में, एनिमल्स, हर जगह होते हैं. इवन ये भी होते, कोल्ड वाटर में भी होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी होते हैं, एक्स्ट्रा हर जगह पाए जाते हैं. इनको हम बोलते हैं हर गली में होते हैं, हर जगह होते हैं. और ये हमारे लिए कितने फायदेमंद नुकसान है वो आगे पढ़ेंगे. फिलहाल हम कैटेगरी. वायरस, smaller than the bacteria, smaller than the bacteria.
देन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ये दिखाई नहीं देता है, ये इससे छोटा तो ये कहाँ दिखाई देगा, इसलिए ये इसके बॉडी में भी रह सकता है, वायरस इसके बॉडी में रह सकता है, इतना छोटा होता है। तो इसलिए वायरस, अगर हम वायरस की स्टडी करेंगे, वायरस इज नॉट लिविंग, वायरस जानदार नहीं होता है, becomes living, becomes active when enters into the living cell, into the living body, living cell हम कह सकते हैं। Nowadays throughout the world people are suffering from a serious disease, that is coronavirus. Virus is not living until it enters into the living cell. ये वायरस एक बेजान होता है तब तक जब तक नहीं लिविंग सेल में जाएगा, इसकी मशीनरी इनकम्प्लीट है, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म ये नहीं कर सकता तब तक जब तक ये लिविंग सेल में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो लिविंग सेल होती है, इस लिविंग सेल के पास सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स, याद रखना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पढ़ाई में। सेलुलर ऑर्गेनल्स, दोज ऑर्गेनल्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर, कोई डाइजेशन करेगा, कोई रेस्पिरेशन करेगा, दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। We can also say organs of the cell. Cell is also microscope. We cannot see it with naked eye. Every organism is basically composed of cells. It is also a cell, but not complete cell. Virus, it is not a cell. It is non-living until it enters in the living cell, and these organs are utilized by the virus and it reproduces. ये reproduction करता है living cell में। जब ये रिप्रोडक्शन करता है तब ये बनाता है क्लोन्स, ये अपनी कॉपीज बनाता है, म्यूटेंट्स बनाता है, ये अपनी कॉपीज बनाएगा, इसीलिए ये डेंजरस है। इसके पास एक स्पेशल मटेरियल होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। सो वायरस क्या होता है, ये भी आता है माइक्रोस्कोपिक में, लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं दिखना है, इसको दिखना तब ये ऑर्गेनिज्म बनता है व्हेन इट एंटर्स इन द लिविंग सेल। लिविंग सेल प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, एल्गी भी हो सकता है, फंगई भी हो सकता है, किसी भी चीज में ये घुसकर उसकी मशीनरी को इस्तेमाल में लाता है। सिंपल एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, किसान लोग ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर एक व्हीकल की तरह होता है जिससे हम प्लाफिंग का फील्ड करते हैं। अब हमें लोड जमीन से ले जाना है घर तक, हम उसको ट्रॉली बांधते हैं। ट्रॉली और ट्रैक्टर के बीच में हुक लगता है। ट्रॉली हैज 2 टायर्स, ट्रैक्टर हैज 4 टायर्स। ये जो हुक लगता है सामने वाला, वो ट्रैक्टर के साथ फंस जाता है। वेयर वी स्टार्ट द ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर है, ये इस तरह आपको याद रहेगा। ट्रैक्टर एक हमारी लिविंग सेल है। अब इसके साथ हम ट्रॉली जोड़ते हैं। ट्रॉली, इस पर हम लोड, घास, क्रॉप्स, जो भी हमें फसल है वो इस पे ले जाते हैं। जब ट्रैक्टर चलेगा तब ये ट्रॉली चलेगी। सो ट्रैक्टर इज द लिविंग सेल, ट्रॉली इज द वायरस। ये इसको हुक निकालो, ये बेजान है। दूसरी बात, आजकल बच्चों में कंफ्यूजन है, किसी इंसान को ये वायरस घुस गया, जब तक लिविंग बॉडी है तब तक वायरस रिप्रोडक्शन कर सकता है। जब लिविंग बॉडी की सेल डेड होगी तब वायरस डिवीजन नहीं कर सकता है। ये एक्टिव तब है जब लिविंग बॉडी है, जब कोई जिंदा है, जब कोई प्लांट जिंदा है, कोई एनिमल जिंदा है, कोई बैक्टीरिया जिंदा है। जब तक वो जिंदा है तब तक वायरस जिंदा है। कोई जानदार इस बीमारी से मर गया, अब उसके बाद ये वायरस एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये तब तक है जब तक वो जान है, जब तक उसकी मशीनरी काम करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक
ये आगे हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। उसके बाद प्रोटोजोन्स। व्हाट आर प्रोटोजोन्स? इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वी कॉल इट प्रोटोजोलॉजी। देयर आर hundreds of branches of biology. अब हम इसको पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, वी कॉल देम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। जो भी क्वेश्चन माइंड में पैदा हो जाएगा वो लिख के रखना, फिर हम बाद में डिस्कस कर। तीसरा प्रोटोजोलॉजी हम इसको कहते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ये भी माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक। लेकिन इनमें एक खास कैरेक्टर होता है, देयर सेल बॉडी सेल इज कंप्लीट, देयर बॉडी सेल इज कंप्लीट। कंप्लीट इन द सेंस हम इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स, हम जिंदा है, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, वो खून सप्लाई करता है, हमारी किडनी फंक्शन करती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है, हमारा लंग्स इनहेल करता है, एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। वी कॉल दीज एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एनी ऑर्गेनिज्म हु इज performing all these activities is called living. So the unicellular organism, they have complete cell. We call them unicellular organisms. Unicellular organisms, also called unicellular organisms. Microscopic, लेकिन unicellular. Let us explain this word uni. Uni means single. Is word single, cellular means celled, single celled animal. It is necessary to discuss here to define you, to describe you what does it mean single celled. Remember, after that we have to discuss algae, then fungi, so that you can understand the classification of microorganisms in detail and clear your concept single celled. I am going to explain you what does it mean single-celled animal. We have amoeba. We have amoeba. This is amoeba. This is the shape of amoeba. This is cell membrane. Biomembrane we call it. This is nucleus. This is nucleus. This is food vacuole. Food vacuole. हर एक जानदार को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत है, एनर्जी जरूरत है, इसलिए इसको भी कुदरत ने सब चीजें रखी हैं। इसके पास न्यूक्लियस भी है, इसके पास ये न्यूक्लियस है जो दिमाग का काम करेगा, जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन है। इसका फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल ये उसको उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये इसको पाऊ है, ये सीडोपोडिया, सीडोपोडिया अच्छी तरह याद रखना, हायर क्लास में भी काम आता है, लोअर क्लास में। सीडो का मतलब होता है, it is word P-S-E-U, P silent. Pseudo means false. False means no definite shape. Look towards my hand. थंब छोटा है, ये फिंगर इससे बीच वाली बड़ी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये डिफिनेट नहीं है। इसी तरह ये अमीबा होता है, ऐसे होता है, ये अमीबा है ऐसे। ये इस सीडोपोडिया की शेप को चेंज भी करता है साथ साथ जब ये चलता है पानी में। ये पानी में होता है, पोडिया मीन्स फीट, इसका मतलब इसको फॉल्स फीट होते हैं। बाकी सब ऑर्गेनल्स अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, गोल्गी बॉडीज भी हैं, साइटोप्लाज्म भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। वी कॉल दोज ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स एंड ओनली सिंगल सेल, दिस सिंगल सेल का मतलब दिस ओनली सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सिंगल सेल, इस तरह हम लिख सकते हैं इम्तिहान में, सिंगल सेल परफॉर्म्स all the metabolic activities, ये activities. Now metabolic activities we have already discussed it a number of times. Respiration करना, digestion करना, circulation होना, excretion होना, reproduction करना, any activity which is performed by our body is called the metabolic activity. Same is the case with this unicellular organ. So we call them protozoans. ये दुनिया में लगभग 5-6 हजार स्पीशीज है। ये फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, वो आगे हमें पढ़ना है। So ये था अमीबा, we call them protozoans. The study of protozoan is called protozoa. They also cause diseases in plants and animals. यहाँ इस तरह याद रहेगा। इनमें एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है, जिससे हम ह्यूमन बीइंग्स को डायरिया होता है। बस इतना याद है, डिसेंट्री डायरिया होता है इससे, जब पानी के जरिए या किसी फूड के जरिए हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है। इसलिए बायोलॉजी इज द साइंस विच helps us to understand ourselves, to helps us to protect ourselves from these pathogens, disease producing organisms, इनको दूसरा नाम हम बोलते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये था प्रोटोजोन्स के बारे में। नाउ चौथा हमने लिखा था एल्गी। ये पानी में होते हैं, वाटर प्लांट्स। ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक भी है। इनमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक में। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कुछ प्लांट्स हैं पानी में होते हैं, कारा, ईडोगोनियम, ये हमारे कश्मीर के खास डल लेक में होते हैं ये प्लांट्स, ईडोगोनियम। स्पायरोगैरा, कोई पढ़ेगा जेरा, कोई बात नहीं, स्पायरोगैरा, ये वाटर प्लांट्स कहलाते हैं, वाटर प्लांट्स। ये लेकिन मैक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन कुछ इसमें से जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्लैमिडोमोनास, these are called algae, these are also microscopic. So इस तरह इसमें कुछ ग्रीन है, कुछ ब्राउन है, कुछ रेड है। किसी में ग्रीन पिगमेंट होता है, फोटोट्रॉफिक भी है, किसी में ब्राउन पिगमेंट है, किसी में रेड पिगमेंट है। वो हर क्लास में हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। इसके बाद अब हमारा लास्ट कैटेगरी of these microorganisms. Okay, so that is fungi, phycology, mycology, ये दो होते हैं, phycology, mycology। fungi, नॉन ग्रीन प्लांट्स, इनको हम बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। इसमें भी यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर होते हैं। इसमें भी माइक्रोस्कोपिक भी है, मैक्रोस्कोपिक भी है। ये याद रखना, दोनों वर्ड, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स जिनको हम अपने आंखों से देखते हैं, जिस तरह मेरे हाथ में पेन में ये देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं। सो फंगी, इस तरह याद रहेगा। मशरूम, इसमें नॉन ग्रीन प्लांट हैं जिनको मशरूम कहते हैं, जो हम खाते हैं, जिनमें 100% प्रोटीन। इसमें मॉर्चुला आता है, मॉर्चुला जिसको हम गुच्छा बोलते हैं, कैनगुच। इसी तरह इसमें 100,000 स्पीशीज है, स्मॉल भी है, माइक्रोस्कोपिक भी है, मैक्रोस्कोपिक। राइजोपस है, बहुत सारी टाइप्स हैं इसमें, राइजोपस। इन्हीं में से हमने निकाला था सबसे पहले दुनिया का पहला एंटीबायोटिक,
दैट्स पेनिसिलिन। पेनिसिलिन रॉबर्ट कोच ने उसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन नोटेटम, ये उस प्लांट का नाम है जिसमें से निकाला, नोटेटम। सो सेकंड टॉपिक हमारा होगा यही, ये हमारे दोस्त कैसे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये हमारे दुश्मन कैसे बनते हैं। सो टुडेज टॉपिक वाज microbiology, microorganisms. Let us recapitulate. Let us remind you the important questions, the important points we have discussed. किसी भी टॉपिक में जो बायोलॉजी से कंसर्न हो, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उस सब्जेक्ट को बायोलॉजी का किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, उसके बाद उस साइंटिस्ट का नाम, वो डेट कब ये दुनिया में हमें पता चला। यानी these are the questions which are asked in the NEET examinations. So जब हमें बेसिक पहले से पता। दूसरी बात, मोर इनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे एल्गी है, जैसे हमें फंगे है, ये कुछ ग्रीक वर्ड्स एंड लैटिन वर्ड्स हो, लेकिन इजीली हम इनको समझ सकते हैं जब हम इनको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो समझ ना आएगा। तो उसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स किस तरह हमें पता चला, जब दुनिया में माइक्रोस्कोप आया। माइक्रोस्कोप के बगैर इनकी स्टडी करना नामुमकिन था। तो इस तरह से अब हमें पता है दुनिया में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ होते हैं। हमने लिखा एयर में भी होता है, पानी में भी होते हैं, ज़मीन में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से ये हमेशा अपने खुराक की तलाश में रहते हैं, अपने होस्ट की तलाश में रहते हैं, और इनको भी उसी तरह के तमाम बॉडी फैक्टर्स होने चाहिए। हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाएंगे जो जिससे हमें ज़्यादा समझाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म भी, ये देखो हर एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होता है, ये याद रखना। नंबर 1, फूड जरूरत होता है, ये हमें पता है। हम भी सुबह उठते हैं, नींद से उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं, कमाएंगे तब हम खुराक लाएंगे, तब खाएंगे, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए फूड की इम्पोर्टेंस है। हम उसके बगैर नहीं रह सकते। हमें पानी की ज़रूरत है, ठीक है, हमें शेल्टर की ज़रूरत है, ये कॉमन क्वेश्चन है। हमें टेम्परेचर की ज़रूरत है, हमें टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की ज़रूरत है, हमें एनवायरनमेंट की टेम्परेचर की ज़रूरत है। इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स विच हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अब बैक्टीरिया, इसको भी फूड की ज़रूरत है। ये अपना फूड कहाँ से हासिल करेगा? ये हमेशा शुगर की तलाश में रहता है, ये हमेशा लिविंग सेल में बहुत शुगर होता है, ये हमेशा अपने फूड की तलाश में रहता है। तो इस तरह से इसको फूड ज़रूरत है, इसको शुगर ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी जानदार इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक उसको शुगर होगा बॉडी में। शुगर गिव्स द लाइफ, ये हमें बनाता है एटीपी, ये बनती है करेंसी ऑफ सेल, जिससे हमें मिलती है एनर्जी। इसी तरह इनको भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये तलाश में रहते हैं फूड कहाँ में हमें मिलेगा। अक्सर हम कहते हैं हमें जख्म नहीं लगना चाहिए, ये स्किन ओपन नहीं होना चाहिए। और अब आपको जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि अगर हवा में ये पाए जाते हैं तो हम पर क्यों अटैक नहीं करते हैं। स्किन, नाक, आँख, मुंह, कान, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। कैसे? हमारे मुंह में थूक होती है, वी कॉल इट सैलिवा। सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम, salivary amylase, also called lysozyme. It kills the bacteria. So they enter in our mouth. नाक से घुस जाएंगे, मुंह से घुस जाएंगे, लेकिन जो थूक हमारे मुंह में है उससे ये खत्म हो जाता है। नाक से हमें म्यूकस निकलता है, हमें यहाँ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। दिस म्यूकस वॉशेस द बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हमारे नाक के अंदर घुस जाए। एंड वी हैव हेयर इन आवर नोज, वी कॉल देम सीलिया, वो इसको ड्रैग करते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर म्यूकस के जरिए हम बाहर कर देते हैं। इसलिए नाक साफ करना, 2-3 बार पानी डालना नाक में, हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
वॉश ऑफ करते हैं। हाथों को धोना, नाखून काटने, नाखून में भी ये बैक्टीरिया बैठ सकता है। जब मेल जमा हो जाता है, फिर जब खाना खाएं तो बैक्टीरिया अंदर जा सकता है खाने के साथ। तब तक ये मुमकिन नहीं है जब तक हम साफ रहेंगे। बैक्टीरिया का दोस्त वो शख्स जो गंदा रहेगा, बैक्टीरिया का दुश्मन वो शख्स जो ज़्यादा साफ पाक रहेगा, नहाएगा, हाथ धोएगा, साबुन इस्तेमाल करेगा, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेगा, तो अपने हाथों से अक्सर इन बीमारियों को, इन पैथोजन्स को हम अंदर अपने मुंह के अंदर, अपने जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं। जब हम इन चीज़ों से परहेज करेंगे, बार बार नाक को नहीं छेड़ना, मुंह को नहीं छेड़ना, आंखों को ऐसे ऐसे नहीं करना, कानों को खुजली ऐसे ऐसे नहीं करना, देखना मेरा हाथ कहाँ था, मैंने किस चीज़ को, मेरे हाथ में पेन है, अब मैं ये पेन रखूँगा इधर, खिड़की खुली रहेगी, दरवाज़ा खुला रहेगा, हवा में बैक्टीरिया वो आएगा बैठेगा इस पर। अब मैंने उठाया, मुझे क्या पता, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप आने से मेरा फ़र्ज़ बनता है आने से पहले इसको मैं सैनिटाइज करता हूँ। ठीक है, जब इसको हम सैनिटाइज करते हैं, इसको हम स्प्रे करते हैं, ये जो स्प्रे करते हैं ऐसे, फिर ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका केमिकल बेस होता है, ये ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आजकल सबों को कहा जाता है, ये टॉपिक इसीलिए हमने चुन लिया, पहले ही चुन लिया, ताकि बच्चों को, बड़ों को, सबको पता चलेगा कि हमें किस तरह इन वायरस से या बैक्टीरिया से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमारे पास डिवाइसेस हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास गर्म पानी होता है, सब कुछ होता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मज़ीद लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करते हैं, इनके कितने हज़ारों फ़ायदे हैं और हज़ारों नुकसान हैं। दैट विल बी द यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। इसी तरह वायरस हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। इसी तरह फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोन्स, वो होगा दूसरा लेक्चर, इनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। थैंक यू वेरी मच। जो भी कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे वो पूछ सकते हैं दूसरे लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।